Hi everyone, this side Chinmoy Ghosh and I welcome you all to my YouTube channel Knowledge and Science. Today I have made another session on Animal Kingdom Part 2. In the previous video it was 14 to 15 questions which was based on Animal Kingdom up till hemichordates, that means non-chordates. I have covered all single question based on non-chordates, that is multiple choice questions, and now in this video I have included all the chordate based possible questions, that is Animal Kingdom Part 2. So before I start the video, please make sure to like the channel, share the channel and subscribe to my channel. Yet 75.4% candidates have not subscribed my channel yet. So I request you humbly to please subscribe my channel so that you can get the upcoming updates of my on this YouTube channel. I am bringing all the possible questions of class 11th and 12th, that means 38 chapters, most expected NEET 2023 questions and 2024 questions I will bring on this particular YouTube channel. So make sure to please subscribe the channel, share with the needy students who really want the help from this type of questions, and make sure to like the channel before you leave after completing the video. So here we start. The first question which actually appears on a screen is, which of the following is cephalochordate? First, Acidia. Second, Salpa. Third, Myxin. And fourth is Branchiostoma. So अब आप ये क्वेश्चन सोचिए कि भाई which of the following is the correct answer, and then give the correct answer and I'll explain you the explanation as well. So I think students, you have got the right answer. So the correct answer is option number 4. Yes, Branchiostoma. C. Cephalochordate, first option if I'll move, that is Acidia, and second Salpa along with Doliolium. These three answer, that means Acidia, Salpa and Doliolium, these are basically urochordates. And Myxin, you can say hagfish, they are cyclostomata. And Branchiostoma is a cephalochordate. In NCERT, in bracket it is written Amphiosax ya lancelet. So please make sure that all the possible name of a particular species or an organism which is mentioned in the NCERT, that all the possible, that is common name, as well as the name which is given italicized, please make sure that all the name you should learn it by heart. So I think you understood the correct answer. So let's move to the next question. Which statement about Doliolum is not incorrect? I repeat the question again. Which statement about Doliolum is not incorrect? So the first option states vertebral column is present. Second, notochord is persistent throughout their life. Third, notochord is present only in larval tail. And fourth, this is also called protochordates. So please understand the question and then know the correct answer. What should be the correct answer? Please make sure that your answer should be very systematic, and I'll explain the answer as well. So I think students, now you know the correct answer according to the question asked. So the correct answer is option number 3. Yes. First of all, again, if I'll mention not incorrect, that means the question is asking that about Doliolum, which is correct. Okay. So first, vertebral column is present. No, urochordates. In this, basically, vertebral column is not present because they are under vertebrates, but this vertebral column is not present. Second, notochord. Notochord is persistent throughout their life. No, this statement again is not correct. This is correct for cephalochordates. And you know the Doliolum, Salpa and Acidia. These three examples are typically urochordates. So basically this is not correct answer with respect to Doliolum what I have asked. Third statement, notochord is present only in larval tail. Yes, this statement is absolutely correct, that notochord is present only in larval tail. Fourth, this is called protochordates. No, there is a combination of protochordates. The subsequent question I will explain that which two combination of will make protochordates. Okay. So
आई थिंक दैट आपको ये करेक्ट आंसर समझ आ गया है। डॉलुला मैंने इसलिए लिया क्योंकि यूरोकॉर्डेट को एक रिप्रेजेंट करने वाला एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी से था वो, तो इसमें ये करेक्ट आंसर ये है कि नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल टेल में ही प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये टिपिकली दिस लाइन इज मेड फॉर सेफेलोकॉर्डेट्स and it is not made for urochordates. Okay, third, first option that again I am referring to, that vertebral column is present, no. And the fourth option I will again explain you in the subsequent questions. So I think now you can understand about the concept behind this question. So let's move to the next question. Next question states protochordates are first cephalochordate and hemichordate, second cephalochordate and echinodermates, third cephalochordate and urochordate, and fourth none of the above. So I think students now आपको पता चल गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. So the correct answer is option number 3. Yes, protochordates are basically a combination of cephalochordates and urochordates. Yes, this is a line typically present in NCERT. So अगर आपका ये आंसर गलत हो गया है, so please again move to NCERT where before starting the vertebrates typical in NCERT, there is a description where it is typically written that protochords are a combination of cephalochordate and urochordate. So make sure that if you have not got this answer right, so please understand this question again, refer to your NCERT, move it to the NCERT, and again please read the line so that properly, so that if this time you got the answer wrong in NEET, if the question arises, you may not commit the same mistake. Okay, so let's move to the next question. The next question is mark correct phylum, comma division, comma superclass. Superclass if any superclass is present in the given options, comma class and suitable examples. ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन भी बड़ा है, ऑप्शंस भी इसमें बड़े हैं, सो बड़े आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि इसमें क्या पॉइंट गलत है, ताकि आपको जब एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई गलती आपको नहीं लगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ पाए. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज chordata, agnatha, cyclostomata, scleroton. Second, chordata, gnathostomata, pisces या piscis, chondrichthyes, trigon. Third option, chordata, agnatha, tetrapoda, amphibia, salamandra. Fourth option, chordata, gnathostomata, piscis or pisces, osteichthyes, carcadon. So अब आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. So I think students, I have given you enough time to understand the question, and I think that you have chose the right answer. So let's move to the correct answer. Yes, so the correct answer is option number 2. Yes, first of all I have asked phylum, so first preference chordata. Yes, phylum chordata. Second, division. That means I have asked gnathostomata. Gnathostomata is a division, piscis. Piscis, as you can know, is a superclass. Next, class, that means chondrichthyes. And suitable example, that is trigon, stingray. Chondrichthyes में suitable example है trigon, जो इसका correct option. अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, chordata, ये बिल्कुल फाइलम है. एग्नेथा, डिविजन. साइक्लोस्टोमेटा, अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा को ध्यान से देखिए, साइक्लोस्टोमेटा आपका क्लास है और इसका सुटेबल एग्जाम्पल है स्कोलोडॉन, डॉग फिश. अब इसका सुटेबल एग्जाम्पल तो ये नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि स्कोलोडॉन कहां से उठाया है मैंने, ये है कॉन्ड्रिक्थिस, और कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा तो नहीं है. हमने देखा है कि मिक्सिन है जो हैगफिश है, वो साइक्लोस्टोमेटा है, बट आपका स्कोलोडॉन तो साइक्लोस्टोमेटा नहीं है या एग्नेथा से बिलोंग ही नहीं करता, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाता है. दूसरी अपन थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं कि कॉर्डेटा फाइलम सही है, एग्नेथा अगेन यू कैन से कि डिविजन सही है. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टेट्रापोडा,
टेट्रापोडा की बात करें तो ये तो बिल्कुल अलग चला गया। एग्नेथा के रेफरेंस में आपको आगे जाना चाहिए था, बट ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं टेट्रापोडा, ये टेट्रापोडा सुपर क्लास तो आप जानते हैं कि ग्नाथोस्टोमेटा के अंडर आ जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि भाई एम्फीबिया होता है, बिल्कुल है, और रेप्टिलिया होता है इसके साथ। बट जो सैलमेंड्रा है वो भी बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। बट आप जैसे ही देख रहे हैं कॉर्डेटा एग्नेथा एक तरफ, हाँ कॉर्डेटा एग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा और उसके रेफरेंस में मिक्सिन अगर मैं लगाता तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन सही होता। बट कॉर्डेटा एग्नेथा टेट्रापोडा, टेट्रापोडा और एग्नेथा का कॉम्बिनेशन गलत होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए कॉर्डेटा बिल्कुल फाइलम सही है। डिवीजन की बात करते हैं ग्नाथोस्टोमेटा, सुपर क्लास की बात करते हैं पिसिस, उसके बाद क्लास की बात करते हैं तो ऑस्टिक थीस, यस, और उसके बाद मैं बात करता हूँ सुटेबल एग्जाम्पल तो कार्कडॉन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑस्टिक थीस कार्कडॉन नहीं है, कार्कडॉन मीन्स ग्रेट व्हाइट शार्क, इसका कॉमन नेम है, जबकि कार्कडॉन कॉन्ड्रिक थीस के अंडर आता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये कॉन्ड्रिक थीस का एग्जाम्पल है और मैंने ऑस्टिक थीस में यहाँ पर पुट अप कर दिया, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है फोर्थ नंबर का, क्योंकि ऑप्शन जो लास्ट का सुटेबल एग्जाम्पल है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्कडॉन एक कॉन्ड्रिक थीस है और ऑस्टिक थीस आपके कार्कडॉन नहीं, कार्कडॉन ऑस्टिक थीस नहीं। इसके जगह पे मैं सपोज एक्सोसीटस लगा देता, ठीक है, या टेरोफाइलम लगा देता, या इसी तरीके का कोई हिप्पोकैम्पस लगा देता, तब तो ये स्टेटमेंट फोर्थ सही होता। बट कार्काडॉन क्योंकि एक कॉन्ड्रिक थीस है और मैंने ऑस्टिक थीस के साथ लगा दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो आई थिंक ये सेकेंड ऑप्शन कॉर्डेटा फाइलम ग्नाथोस्टोमेटा डिवीजन सुपर क्लास स्पीसीज क्लास कॉन्ड्रिक थीस और एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइगॉन, ये इसका एक पूरा का पूरा आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया है क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोमेटा? साइक्लोस्टोमेटा में कितने पेयर्स के गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट 4 पेयर्स, सेकंड 6 to 15 पेयर्स, थर्ड 3 पेयर्स एंड फोर्थ 10 पेयर्स। अब आप ये बहुत ध्यान से सोचिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द करेक्ट मैचिंग विद द पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोमेटा। So I think आपको करेक्ट आंसर पता चल गया है। So the correct answer is option number 2. Yes, 6 to 15 pair of gill slits are present in cyclostomata. 4 pairs आप जानते हैं कि आप पिसिस फाइलम पिसिस में जाएंगे तो पिसिस के अंदर या पाइसिस के अंदर आपको मिल जाएगा ऑस्टिक थीस, उसके पास 4 पेयर्स प्रेजेंट होता है एज पर एनसीईआरटी। 3 पेयर्स एंड 10 पेयर्स का कोई रेफरेंस नहीं है। सो 6 to 15 पेयर्स जो हैं गिल स्लिट्स का पेयर, 6 to 15 pairs of gill slits are present in cyclostomata. ये बिल्कुल टिपिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑस्टिक थीस से बिलोंग करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर समझ आ गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर। अब दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं कि एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फर्स्ट एग्जांपल स्ट्रुथियो, सेकंड मैक्रोपस, थर्ड मकाका एंड फोर्थ राना। अब आप ये बताइए कि ये स्टेटमेंट पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किस में दे रखा था और फिर आपको पता चलेगा कि भाई इसके बाद इसका जो रिस्पेक्टिव आंसर होगा वो क्या होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ आ गया है और इसका इनफ टाइम भी मैंने आपको इसका ऑप्शन समझने के लिए दिया। सो अब समझाते हैं आपको इसका। सो पहले पता कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यस, स्ट्रुथियो। स्ट्रुथियो वल्चर, इसका स्ट्रुथियो जो वल्चर का कॉमन आपका साइंटिफिक नेम है जो कि ICZN देता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके हिसाब से एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ये एक टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन है जो कि आपको एबीज के लिए रिप्रेजेंट करती है और ये स्ट्रुथियो इसमें एग्जांपल बैठता है। दूसरा अपन देख लेते हैं कि ये मैक्रोपस। मैक्रोपस जानते हैं कि मैक्रोपस यानी कि कंगारू। कंगारू तो भाई एवीज नहीं है, मैमल्स। मकाका, मकाका अगेन मंकी, मैमल्स। राना, राना की बात करें तो ये फ्रॉग है और ये एम्फीबिया है। इसी वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है।
इसके साथ साथ मैंने जो आपको इसके कॉमन नेम्स भी बताए लाइक स्ट्रुथियो, वल्चर, मैक्रोपस, आप कंगारू, माकाका, आपका मंकी और राना फ्रॉग, ये आपको चारों के कॉमन नेम्स भी याद होने चाहिए और एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स भी हैं। सो आपको वो नाम याद होने चाहिए बिकॉज मैच द फॉलोइंग में एनटी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बाकी स्टेटमेंट गलत क्यों है और पहला सही क्यों नहीं, ये भी मैं समझा पाया हूं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not from Pisces? First, Spolodon. Second, Exocetus. Third, Clarius. Fourth, Balanoptera. So, अब आपको इसका करेक्ट आंसर आई थिंक पता चल गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यस, बैलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि स्पोलोडॉन। स्पोलोडॉन जो है वो डॉग फिश है और ये कॉन्ट्रैक्टिस है। फिशिस एक्सोसीटस की बात कर लेते हैं। सॉरी सॉरी एक्सोसीटस इज अगेन फ्लाइंग फिश, ऑस्टिकथिस। क्लैरियस, मागुर, इट्स अगेन ऑस्टिकथिस। एंड बैलेनोप्टेरा, मैमल्स, मैमल्स हैं ये, ब्लू व्हेल जिसको मैंने कहा। तो इसी वजह से, क्योंकि फिशेस में मैमल्स जो इंक्लूडेड ही नहीं है, और बैलेनोप्टेरा तो, और डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल और डेल्फिनस डॉल्फिन, ये दोनों आपके फिशेस नहीं है। आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि भाई जो है ब्लू व्हेल भी एक मछली है, बट नहीं, वो एक मैमल है। और फिशेस जो है वो बैलेनोप्टेरा नहीं है। स्पोलोडॉन, एक्सोसीटस और क्लैरियस ये तो है। इसी वजह से बैलेनोप्टेरा को मैंने स्टेटमेंट दिया। हो सकता है मकाका से आप आराम से बता पाते हैं, बट बैलेनोप्टेरा से थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। अब ये पूछेंगे बैलेनोप्टेरा, बिल्कुल मैमल्स के अंदर एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे, जो सबसे लास्ट पेज है इस चैप्टर का, वहां पर उसके एग्जाम्पल्स दे रखे और वो ही एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं लूंगा, एनसीईआरटी के अंदर से मैंने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन स्पोलोडॉन एक डॉग फिश है, ये कॉन्ट्रैक्टिस है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश एक ऑस्टिकथिस है। क्लैरियस की बात करूं, मागुर जो कि एक ऑस्टिकथिस है। और बैलेनोप्टेरा जो ब्लू व्हेल है, जो कि एक पिसिस नहीं या पाइसिस नहीं है, जबकि वो एक मैमल है। सो आई थिंक कि आपको अब इसका करेक्ट आंसर पता चल गया है। इफ आपको इसका आंसर पता चलने में प्रॉब्लम हुई हो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1, in Prestes, male have pelvic fins which bears claspers. Okay. Statement number 2, gill slits are separate and are with operculum. Options पे पढ़ देता हूँ। Option number 1, statement 1 is true and statement 2 is also true. Second, statement 2 is true and statement 1 is false. Third, both statements are false. And fourth, statement 1 is true and statement 2 is false. सो अब आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको इसका करेक्ट आंसर आफ्टर रीडिंग ऑल द बोथ स्टेटमेंट्स एंड द ऑप्शंस एज वेल, आपको इसका करेक्ट आंसर समझ आ गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यस। सबसे पहली बात करते हैं कि इन प्रिस्टिस मेल हैव पेल्विक फिन्स व्हिच बियर्स क्लैस्पर्स। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट कहां से मैंने उठाया, पाइसिस या पिसिस? उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्टिस के लिए वो ने उठाया है। और प्रिस्टिस क्या है, कॉन्ट्रैक्टिस से तो है। ठीक है, सॉफिश। और यहाँ पर पेल्विक फिन्स जो है उनमें क्लैस्पर्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड आर विद ओपर्क्यूलम, नहीं, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड आर विदाउट ओपर्क्यूलम। कॉन्ट्रैक्टिस का सबसे बड़ा फीचर है कि उसके पास ओपर्क्यूलम नहीं है। दैट्स व्हाई टू अवॉइड सिंकिंग दे कंटिन्यूअसली हैव टू स्विम। आप शार्क्स को देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली वाटर में स्विम करती रहती है सो दैट इट मे नॉट सिंक इनटू द वाटर डीप। बट आप देखेंगे कि ऑस्टिकथिस को वो स्विम ना भी करे तब भी वो पैसिवली फ्लोट करती है बिकॉज उनके पास ओपर्क्यूलम है जो कि एयर कवर, ब्लैडर कवर है। इसके वजह से आप कह सकते हैं गिल कवर्स बोलते हैं उसे। सो उसके वजह से वो डूबती नहीं है, वो सिंक नहीं करती है। बिकॉज ऑफ दिस ओपर्क्यूलम ऑस्टिकथिस डज नॉट सिंक इन द सी, whereas chondrichthyes have continuously have to swim so that it may not sink into deep into the sea.
So statement 1 is absolutely true, which states in Pristis male have pelvic fins which bears claspers, and this statement is from chondrichthyes. And statement number 2, gill slits are separate and are with operculum. No, it's absolutely false. Gill slits are separate and are without operculum. So statement 1 is true and statement 2 is false. इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इसका करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन में समझाने में समर्थ रहा हूं. सो लेट्स मूव. मार्क द करेक्ट मैचिंग. फर्स्ट बेटा एंजल फिश, सेकंड टेरोफाइलम फाइटिंग फिश, थर्ड ट्राइगॉन सॉ-फिश एंड फोर्थ इक्वस हॉर्स. अब आप बताएंगे कि इसके जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया था कि भाई मैं कहीं ना कहीं जो कॉमन नेम्स हैं, एक तो आईसीजेडएन के नेम्स और उसके साथ रिप्रेजेंटिंग कॉमन नेम्स, ये भी इससे भी क्वेश्चन मैंने बनाया. सो अब आप बताइए कि इस स्टेटमेंट को देखिए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. यस, बेटा. बेटा इट इज अ फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजल फिश. बेटा एंड टेरोफाइलम ये दोनों के दोनों ऑस्टिकथीज के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, और ये मैराइन फिशेस हैं. एनसीईआरटी में मैराइन है. ट्राइगॉन की बात करें तो ट्राइगॉन सॉफिश नहीं, प्रिस्टिस सॉफिश है. ट्राइगॉन स्टिंगरे है. ठीक है, ट्राइगॉन का जो कॉमन नेम होता है वो स्टिंगरे है और वो कॉन्ड्रिक्थीज. ट्राइगॉन इट्स अ कॉन्ड्रिक्थीज एंड इट्स कॉमन नेम इज स्टिंगरे. बट सॉफिश कौन है? तो सॉफिश अपना प्रिस्टिस है. ठीक है, जो कि अगेन कॉन्ड्रिक्थीज है. और फोर्थ ऑप्शन इक्वस. यस, हॉर्स. सो इक्वस एग्जाम्पल, इक्वस इसका जो है आईसीजेडएन का इटैलिसाइज्ड नेम है और हॉर्स इसका कॉमन नेम है. सो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो सारे स्टेटमेंट ऑप्शंस के साथ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया. सो आई थिंक आपको इसके स्टेटमेंट ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ रेप्टिलिया इज फर्स्ट क्रीप और वॉक, सेकंड क्रॉल और स्विम, थर्ड क्रीप और क्रॉल, फोर्थ स्विम एंड वॉक. तो आप प्लीज बताइए स्टूडेंट्स किसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. यस, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीप या क्रॉल. क्रीप या क्रॉल लैटिन वर्ड है. रेपियर जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्रीप और क्रॉल ये एक लैटिन वर्ड है. रेप्टिलिया आपसे पूछे कि भाई रेप्टिलिया का जो है वो एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है क्रीप और टू क्रॉल. इसके अलावा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि भाई ये वर्ड जो है रेप्टिलिया ये ओरिजिन में क्या है, लैटिनाइज्ड है. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड. ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आया. चलिए हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज और आर पॉइजनस. इनमें से कौन सा पॉइजनस है? फर्स्ट टेस्ट्यूडो, सेकंड किलोन, थर्ड एलिगेटर एंड फोर्थ बंगरस. तो स्टूडेंट्स प्लीज सोचिए कि इसमें से कौन से पॉइजनस है और मैं फिर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. यस, पॉइजनस में बंगरस जिसका कॉमन नेम है क्रैब, वाइपरा वाइपर और नाजा कोबरा जिसको कहते हैं ये पॉइजनस है. टेस्ट्यूडो ये टर्टल्स, टेस्ट्यूडो यानी कि टर्टल. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिगेटर. किलोन जो है वो आपका आई थिंक किलोन क्या था, टर्टल. किलोन जो है वो एक टर्टल है. टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस है और एलिगेटर का कॉमन नेम भी एलिगेटर.
बंगरस क्रैथ है, इसके साथ नाजा कोबरा है, एंड वाइपेरा वाइपरा। आपको याद रखना बंगरस और वाइपेरा और नाजा ये तीन जो है ये पॉइजनस स्नेक्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आया। ये रेप्टिलिया के कॉमन एग्जांपल्स है। सो लेट्स मूव। विच शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। इनमें से कौन से अपने जो स्किन है वो स्किन कास्ट के हिसाब से शेड करते थे? फर्स्ट कोलंबा, सेकंड कॉर्बस, थर्ड कैलोट्स एंड फोर्थ डेल्फिनस। तो अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यस, कैलोट्स। एक्चुअल में देखिए कोलंबा पिजन ये अगेन एबीज है, कॉर्वस क्रो ये भी एबीज है, और डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन ये क्या होता है? ये हमारे पास मैमल्स होते हैं, और कैलोट्स ये बेसिकली रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, सो ये लोग जो रेप्टाइल्स हैं ये अपने बेसिकली लिजार्ड है, और ये स्किन अपने स्किन कास्ट के हिसाब से ये रिमूव करते हैं। कैलोट्स यानी कि ये लिजार्ड्स हैं, सो ये अपने स्किन को स्किन कास्ट के हिसाब से शेड करते रहते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो एवीज है, और फोर्थ ऑप्शन मैमल्स है, थर्ड ऑप्शन रेप्टाइल है। तो इसी वजह से ये अपने स्किन को स्किन कास्ट के हिसाब से रिमूव करते रहते हैं। सो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाता है। सो आई थिंक कि आपको इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सब दे पाया। सो लेट्स मूव। Which glands are present in birds? First, sweat and sebaceous. Second, sweat and gastric. Third, sebaceous and gastric. And fourth, none of the above. So I think students आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया है। So the correct answer is ऑप्शन नंबर 3, यस, sebaceous and gastric। देखिए ऑयल ग्लैंड्स तो इसमें प्रेजेंट है ही, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। स्वेट ग्लैंड्स नहीं, सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम प्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, और ये अपनी पूरी जो टेल वगैरह को ऑयलिंग या प्रीनिंग जिसको कहते हैं उसके लिए हेल्प करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो भी बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखें, स्वेट नहीं, सेबेशियस यस, स्वेट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, गैस्ट्रिक बिल्कुल प्रेजेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शन सही है, सेबेशियस ग्लैंड्स भी और इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कवर कर दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड भी, जो कि एनिमल किंगडम पार्ट 2 के नाम से आपके सामने आएगी। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें 38 चैप्टर्स बायोलॉजी के मैं लाऊंगा, जिसमें से एक्सक्लूसिवली आपको 38 चैप्टर्स के डिटेल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि अभी मिल रहे हैं। और इसके आपको नीट जब एग्जाम बिल्कुल अप्रोच कर रहा होगा उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरे के पूरे थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी बायोलॉजी में पढ़ लो और काम हो जाए, नहीं। मैंने इस बार नीट का पेपर देते हुए बहुत ज्यादा महसूस किया कि आप बायोलॉजी में जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज थ्योरी यू नो इज नॉट इनफ बिफोर गिविंग द नीट एग्जाम, बिकॉज NTA is changing its current pattern to frame the questions day by day. NTA want that more number of tough or twisty questions should be asked by to the students in biology segment, because वो हमारा खुद का सेगमेंट है। और NTA चाहता भी है कि जो सेगमेंट लेके आप पूरी MBBS पढ़ोगे, सो उस सेगमेंट में आपकी कितनी अच्छी कमांड है वो NTA बिल्कुल आपसे जज करेगा, वो NTA आपसे बिल्कुल एक्सप्लेन भी करेगा, इनसे चाहेगा भी कि भाई आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। सो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आप प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को
जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, आपके यूट्यूब होता है, आपके फेसबुक से आप जिनसे कनेक्टेड हो, प्लीज इन्हें शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।